अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये यूनिट 3 है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट जो मैटर है उसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है दोज आर एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर इन टर्न मेड अप ऑफ द एटम्स। सो इन 1800 में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? ओनली 31 एलिमेंट्स were discovered and this number increases up to 63 in 1865 में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? 63 and in 1800 we have 31, in 1865 we have 63 and at present we have 114 or we have 100 and in some books we have 118 elements discovered so far. Now the study of these elements, अब साइंटिस्ट्स को क्या था कि उनको स्टडी करनी थी ये एलिमेंट्स. It was very difficult to study these elements one by one, so they felt the need for the classification of elements. So our first topic of this unit is need for the classification of elements. Need for the classification of elements. Now, first of all, we should know what is classification. Classification कहते हैं grouping को. Grouping of elements in such a way, those elements which have the same properties, they are placed in the same group. Classification means grouping of elements on the basis of their properties. Those elements which possess similar properties, they are placed in the same group, while those elements which possess different properties, they are placed in the different groups. So ये एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे, we have 31, then we have 65. So these were classified in such a way that those elements which have the same properties, they fall within the same group, and those elements which have the different properties, they are placed in the different groups so that their study became easy. So need for the classification was grouping of elements so that their study became grouping of elements so that their study become easy. इसीलिए क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को ताकि उनकी स्टडी जो है वो आसान बने और सिस्टमैटिक वन. That is need for the classification of elements. Now we have the historical development. कौन सी classifications दी गई time to time. That is historical development in the classification of elements. Historical development in the classification of elements. सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो दी गई, that was Dobiners triads or law of triads. Triads or Dobiners triads. अब दिस आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्रायड्स. अब इसने क्या किया, जॉन डॉबिनर ने क्या किया, इन 1817 इसने ग्रुप्स बनाए तीन एलिमेंट्स के इन सच ए वे दैट जो मिडल वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था, दैट वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट वन. सपोज उसने बनाए थे तीन ग्रुप्स ए बी एंड सी इन सच ए वे, किस बुनियाद पर, ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट. दैट इज कॉल्ड एज द डॉबिनर्स ट्रायड्स. फॉर एग्जांपल वी हैव lithium, sodium and potassium.
लिथियम का मास जो है दैट इज 7, इसका 23 एंड इसका 39। अब इसने क्या किया, उसने कहा कि जो मास है सोडियम का वो क्या है, वो कैसे हम निकालेंगे। इसका मास जो है दैट इज 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 23। जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका मास जो है दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मास ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट दैट इज डॉबनर्स। उसने डॉबनर्स ट्रायड्स में हम ये कहते हैं कि जो उसने क्लासिफिकेशन दी, उसने कहा उसमें कि हमें ग्रुप बनाना है तीन तीन एलिमेंट्स का। जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका मास जो होगा दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मास ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट दैट इज द डॉबनर्स ट्रायड्स। बट दिस क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन जो है it was applicable only up to calcium, law of triads. In this classification a group of 3 elements was made in such a way that mass of the middle element is the mean of the masses of first and the last element. For example, you have lithium, sodium and potassium. lithium का मास जो है that is 7, इसका है पोटेशियम का 39 and the sodium it is 7 + 39 divided by 2 it comes out to be 23. It is 23 mass of the sodium जो है that is the arithmetic mean of the mass of the first and the last. इसी तरह से है, उसने कैलकुलेट करके दिया था। और we have the other elements such as we have chlorine, bromine and iodine. इसका है क्लोरीन का 35.5 while as the mass of the iodine is 127 and इसका है that is 80. It comes out to be 80. It is the इसका जो ब्रोमीन का मास जो है that is the arithmetic mean of the mass of the first chlorine and the iodine. But this classification इसके कुछ demerits है and then it was later on discarded. Why it was what are the various demerits of this classification? That this classification it was applicable only up to calcium, applicable up to calcium only, and hence was later on rejected. दिस वॉज लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो मिडल वाला एलिमेंट होता है उसका मास जो होता है दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम एंड लेटर ऑन इट वाज डिस्कार्डेड। तो उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन दी दैट इज द टेल्यूरिक सिक्रियूज। नंबर सेकेंड जो है टेल्यूरिक सिक्रियूज। It was given by Chain Cortes, AEB Chain Cortes. इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। एंड उसने एक हेलिकल पीरियोडिक टेबल भी दिया था एलिमेंट्स के लिए, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला तो hence it was also rejected. In this classification we have elements
they were arranged in order of their increasing atomic masses. लेकिन इस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, तो it was later on rejected. उसके बाद है that is another classification was proposed by John Alexander Newland, that's law of octaves. Number third classification, that's law of octaves, given by John Alexander Newland. अब इसने क्या कहा, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो आफ्टर जो एट्थ एलिमेंट होगा, अगर हम अरेंज करेंगे 1 to 7, अब एट्थ एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी जो है दैट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ द फर्स्ट वन एंड सो ऑन, दिस लाइक द कैसे लाइक द एट्थ नोड ऑफ ए म्यूजिकल स्केल. सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to this classification, when elements are arranged on the basis of their increasing atomic masses, the properties of the eighth element resembles with that of the first one, like the musical, like the node of, like the eighth node of the musical scale. Simple. For example, इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, सपोज हमने किया अरेंज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे एट दैट टाइम, एंड देन वी हैव द सोडियम हियर. तो जो प्रॉपर्टी अगर 1 2 3 4 5 6 7 जो एट्थ एलिमेंट है दैट सोडियम, इट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ द लिथियम. एंड इसी तरह से है, इसके नीचे आएगा दैट्स पोटेशियम, इट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ द सोडियम. यहाँ पर मैग्नीशियम, इट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ द बेरिलियम. एंड दिस increasing order when these elements are arranged in order of their increasing atomic masses, जो एट्थ इसने कहा, इस क्लासिफिकेशन में हम ये पढ़ते हैं, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने कहा कि जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है विद दैट ऑफ द फर्स्ट वन, एंड हिंस दे फॉल विद इन द सेम ग्रुप एंड दे possess the same properties. But this classification, after the discovery of the noble gases, the property of the eighth element no longer resembles with that of the first one, and hence this classification was also rejected. यहाँ पर फिर later on discover हो गए noble gases. Suppose we have here that is neon. Neon is the eighth element. Now it no longer resembles with that of the lithium, and hence this classification was also rejected. This was the John Alexander Newland's law of octaves. Law of octaves में हम कहते हैं after an interval of 8 elements. Eighth element जो होगा octave. Eighth element जो होगा that resembles with that of the first one. But discovery of the demerit जो है इसका, इस classification का, वो ये है कि जब noble gases discover हो गए तो ये क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं रही. आफ्टर द discovery of noble gases, the properties of the eighth element no longer resembles with that of the first one, and इसी तरह से this classification it was also
not applicable for the heavier elements. It was applicable to lighter elements up to calcium only, and later on it was it do not go well with that of the heavier elements, and hence this classification was also rejected. इसके बाद है another classification that was proposed by the लोथरमियर और मेंडलीव, त्रिमूर्ति मेंडलीव, वो दोनों अलग अलग से काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, बट देयर रिजल्ट्स वर द सेम। बट जो मेंडलीव का जो वर्क था वो पहले पब्लिश हो गया, एंड हिंस द इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू द मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोथरमियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लोथरमियर्स क्लासिफिकेशन। अब लोथरमियर्स क्लासिफिकेशन क्या थी? उसने कहा था कि अगर हम प्लॉट करेंगे द एटॉमिक masses of elements with atomic volumes, the elements which possess same properties, the elements which possess same properties occupy the same position in the curves. For example, उसने प्लॉट किया था ग्राफ between the atomic masses of the elements and the atomic volumes. What he found that suppose यहाँ से है atomic volume, यहाँ से है atomic mass, and he obtained the curves like this. तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आते थे, सपोज दीज आर द टॉप ऑफ द कर्व्स, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी तरह से है रुबीडियम, तो दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशंस असेंडिंग टॉप ऑफ द पीक्स। इसी तरह से है वी हैव बेरिलियम, वी हैव here you have beryllium, here you have magnesium, calcium. They occupy the same positions on the peaks. But इसके जो रिजल्ट्स आए वो दैट वेरी करेक्ट वन, बट इस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले जो रिजल्ट्स आए दिए थे मेंडलीव ने, उनको अप्रिशिएट किया गया। बोथ रिजल्ट्स, मेंडलीव्स वर्क एज वेल एज द लोथरमियर्स वर्क, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी रिगार्डिंग द एलिमेंट्स, दे पोजेस द सेम रिजल्ट्स, बट इसका वर्क जो है दैट वाज पब्लिश्ड अ बिट लेटर देन दैट ऑफ द मेंडलीव, एंड हिंस मेंडलीव को ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल गया। तो वी हैव द मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। We have fourth one, Mendeleev's classification of एलिमेंट्स। मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन है इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड नंबर सेकंड है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सपोज वी हैव टू थिंग्स इन दिस मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीव्स periodic law
अब मेंडलीवस पीरियोडिक लॉ है क्या? मेंडलीवस पीरियोडिक लॉ ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses after certain intervals, the properties of the elements, those elements which possess the same properties, they fall within the same group. और ऐसे हम कह सकते हैं जो physical और chemical properties है elements की, they are which fall within the same group, they possess the same, those elements which possess the same properties, they fall within the same group. It is because of their increasing atomic masses. So we have Mendeleev's periodic law when elements are arranged, when elements are arranged in order of their increasing atomic masses, the elements which possess same properties fall within the same group after certain regular interval. After certain regular interval. या हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, इट इज बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. द फिजिकल एंड, और दूसरा स्टेटमेंट जो है पीरियोडिक लॉ का, मेंडलीवस पीरियोडिक लॉ का, वो ये है द फिजिकल एंड द केमिकल properties of the elements or the periodic functions of their atomic masses. ये है मेंडलीवस पीरियोडिक लॉ. मेंडलीवस पीरियोडिक लॉ ये हमें कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो वो एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, दे फॉल विद इन द सेम ग्रुप आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स. द प्रॉपर्टी जो होती है वो रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्ट्यूज में भी हम कहते हैं कि एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लेकिन वहाँ पर हम कहते हैं कि द एट्थ एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है विद दैट ऑफ द फर्स्ट वन. व्हाइल इन केस ऑफ द मेंडलीवस पीरियोडिक लॉ वी से दैट द आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, कुछ इंटरवल होने के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है एलिमेंट्स की, एंड वो एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है दे फॉल विद इन द सेम ग्रुप. दिस वाज अबाउट द मेंडलीवस पीरियोडिक लॉ. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल गो थ्रू द मेंडलीवस पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. थैंक यू सो मच.